السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق نور نبیک من نوری وأبدى الخلق من نور والصلاة والسلام على نور الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جی لگا کر کے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا ماوانا ملجانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارکباد ہے ہم اور آپ کی آج کی اس نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی رات میں، نوروں کی سرزمین پر دارالعلوم سلطانیہ کے اس آنگن میں جلسہ دستار بندی میں حاضر آنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا آنا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا قبول و مقبول فرمائے۔ محترم حضرات، مجھے 11:30 بجے تک بولنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت علامہ و مولانا طارق حسین صاحب قبلہ مصباحی مدظلہ العالی والنورانی نے ابھی بتایا کہ حضور 11:30 بجے تک اپنی تقریر سمیٹ لیجئے گا۔ میں اس سرزمین پر مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مجیب اللہ خان صاحب قبلہ مصباحی کے حکم پر آیا، ساتھ ہی ساتھ میرے بڑے عزیز حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ مصباحی مدظلہ العالی والنورانی کی محبتیں رہیں۔ محمد شکیل اختر نظامی آپ کے محبتوں کے حوالے ہوا۔ یہ دستار بندی کا پروگرام ہے، انشاءاللہ میں تعلیم ہی کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے آئیں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اس بات پر۔ آج ہم نعت میں مزہ لیتے ہیں اور حقیقت میں نعت نبی پڑھنا اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ نعت لکھنا بھی عبادت ہے، نعت سننا بھی عبادت ہے، نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں ایک بڑی اچھی کتاب، مختصر کتاب لیکن جامع کتاب عربی ادب میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے اظہار العرب۔ اس کتاب کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بھی لکھے گئے ہیں۔ میں نے سیرت کی ایک کتاب پڑھی، حدیث پاک کی، دلائل النبوت، جو حافظ ابو نعیم علی رحمہ کی کتاب ہے۔ اس کے ایک جگہ حاشیہ میں نے دیکھا تھا، حضرت حسان بن ثابت کے اسی شعر کو لکھا گیا، اس کی تشریح کی گئی، اور تشریح کرنے کے بعد محشی نے ایک بڑا پیارا جملہ وہاں لکھا تھا کہ یہ جو اشعار ہیں اغروا علیہ للنبوہ، یہ جو اشعار ہیں جس کو حضرت حسان بن ثابت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ اشعار اختلاف ہے کہ یہ کس کے ہیں۔ تو حافظ ابو نعیم کی اس کتاب دلائل النبوت کی اس حاشیے کے اندر محشی نے لکھا، بعض کا ماننا ہے کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں، اور بعض لوگوں کا ماننا ہے، اکثر کا ماننا ہے کہ یہ شعر، یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت کے ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ یہ سارے اشعار حضرت حسان بن ثابت کے ہیں۔ اسی میں ایک شعر ہے، حضرت حسان بن ثابت نبی کی تعریف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ نبی کی تعریف حضرت حسان بن ثابت کرتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، ان کی تعظیم کو بڑھانے کے لیے، ان کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے، بزرگی کو بڑھانے کی اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا۔ یہ جو شقہ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اس کے معنی ہوتا ہے مشتق کرنا، اس کے معنی ہوتا ہے ملانا، اس کے معنی ہوتا ہے نکلنا۔ اب حضرت حسان بن ثابت شعر لکھتے ہیں اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، اپنے نام سے مشتق کیا، اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کا وجود نہیں تھا، جب دنیا ہستی میں نہیں تھی، تو اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو وجود بخشا۔ اب حضرت حسان بن ثابت اسی حدیث کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں کہ شق لہ من اسمی، اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، کیوں؟ تاکہ نبی کے عظمت کو بڑھائے، نبی کی بزرگی کو بڑھائے، نبی کے مراتب کو بڑھائے۔ آگے فرماتے ہیں فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش والا محمود ہے، عرش والا محمود ہے، اور یہ محمد ہے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ شعر حقیقت میں قرآن پاک کی ایک آیت کا تشریح ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے فَذُو الْعَرْشِ، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذو العرش المجید، اللہ کے بارے میں اللہ نے خود اپنی تعریف توصیف کی ہے ذو العرش المجید کے ذریعے۔ اب حسان بن ثابت کہتے ہیں فذو العرش محمود وہذا محمد، اس میں بڑے اچھے نقاط موجود ہیں۔ حضرت حسان نے کیا لکھا؟ عرش والا محمود ہے، اور یہ ہمارے آقا محمد ہیں۔ لیکن علماء میرے پیچھے تشریف فرما ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے سامنے میں ایک طالب علم ہوں، ان کے سامنے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن حضرت حسان بن ثابت نے جو استعمال کیا عرش والا محمود اور یہ محمد، محمود اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محمود اس میں مفعول ہے، اور محمد کو اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محمد بھی اس میں مفعول ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ محمود ثلاثی مجرد سے ہے اور محمد ثلاثی مزید فی سے ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں یاد رہے کہ ثلاثی مزید فی اسی سے مجرد ہے جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اسی سے مشتق ہے۔ اب حسان بن ثابت نے کتنے بہترین انداز میں لکھ دیا کہ عرش والا محمود، یہ محمد، محمود بھی اس میں مفعول، محمد بھی اس میں مفعول، محمود کے معنی جس کی تعریف کیا ہوا، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا۔ اب غور کریں، محمود کا معنی بھی تعریف کیا، محمد کا معنی بھی تعریف کیا ہوا، دونوں اس میں مفعول ہیں، دونوں اس میں مفعول ہیں۔ میرے پروردگار، میرے خدا بات کیا ہے؟ تو نے اپنے نبی کو، اپنی نام کو اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بھی محمود ہے، تیرا بھی، تیرے نام کا بھی تعریف، تیرے نام کا بھی معنی تعریف کیا ہوا۔ تیرے محبوب کا نام محمد ہے، اس کے بھی نام کا معنی، نبی کے نام کے معنی بھی یہی ہوا، تعریف کیا ہوا۔ تو تیری تعریف کون کر رہا ہے؟ محمد کی تعریف کون کر رہا ہے؟ میرے خدا، تیرا نام محمود ہے، تعریف کیا ہوا، میرے نبی کا نام محمد ہے، تعریف کیا ہوا، تو تیری تعریف کون کر رہا ہے؟ آقا کی تعریف کون کر رہا ہے؟ تو علامہ مجیب اللہ
بولیں گے؟ علامہ طارق حسین صاحب کہیں گے مولوی شکیل اختر نظامی اتنے گہرائی میں ڈوبنے کی ضرورت کیا ہے جب تجھے پتا ہے دنیا کا وجود نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، نہ زمین ہے نہ آسمان، جنات ہے نہ سورج، کائنات کے کسی چیز کا وجود نہیں ہے، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، رکھا کہاں؟ اپنے قرب میں رکھا، رکھا کہاں؟ اپنے قرب میں رکھا، اپنے پاس رکھا، جب زمین تھی نہیں اپنے پاس رکھا، آسمان تھا نہیں اپنے پاس رکھا، کائنات کا وجود نہیں تھا اپنے پاس رکھا، کس لیے رکھا؟ اسی لیے رکھا میرے محبوب تو مجھے لا الہ الا اللہ کہتا چلا جا، میں تجھے محمد رسول اللہ کہتا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی سے بہتر کوئی اللہ کی تعریف بیان کر سکتا ہے اور نہ اللہ سے بہتر مصطفیٰ کی تعریف کوئی کر سکتا ہے، نہ اللہ سے بہتر کوئی مصطفیٰ کی تعریف کر سکتا ہے، نہ آقا سے بہتر اپنے پروردگار کی کوئی تعریف کر سکتا ہے۔ اور سنیں حدیث رسول بھی ہے اور کئی حدیثیں ہیں، میں 6 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی حدیث جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، ہمیشہ علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور وہی نبی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، وہی نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العرش، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، وہی نبی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث، دیکھیں ایک حدیث کہہ رہی ہے، نبی کا فرمان ہے، آقا فرماتے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ اب حدیث میں تضاد واقع ہو گیا ہے کہ آخر اس تضاد کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اب ہم علماء کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیشہ بیان بھی کرتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، نبی کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں نے نور کو پیدا کیا ہے۔ اب غور کریں یہ حدیث ایک جگہ، پھر وہی نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، وہی نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، وہی نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی خدا ہے جس نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، وہی نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العرش، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا۔ اب تضاد یہ ہے کہ مانا کس کو، قلم پہلے یا کرسی پہلے، لوح پہلے یا کیا پہلے؟ نبی پہلے، نبی کا نور پہلے ہے یا قلم پہلے ہے یا لوح پہلے ہے یا عرش پہلے ہے یا تختی پہلے ہے یا عقل پہلے ہے؟ تو علامہ مجیب اللہ خان صاحب قبلہ بول اٹھے، محمد شکیل اختر نظامی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو پوری حدیثیں تو پڑھتے جا رہے ہو کسی حدیث سے یہ ثابت ہے نبی فرماتے اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، نبی فرماتے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک حدیث اور ہے، نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ الروح، اللہ نے سب سے پہلے روح کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ 6 حدیث پاک ہے، ہر حدیث ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، ایک حدیث کہہ رہی ہے اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اب تضاد ہے، اس کو فیصلہ کیسے کریں گے، کیسے اس میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تو علامہ طارق حسین صاحب یہ بڑے علماء تطبیق کی صورت نکالتے ہیں اور بڑی گہرائی میں جا کر فرماتے ہیں سنو یہ ایک حدیث تو بالکل ظاہر ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ پھر نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ تو قلم سے بھی مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں قلم سے مراد کوئی اور نہیں ہے، قلم سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، قلم سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر، اللہ قرآن پاک میں فرماتا بھی ہے نون والقلم وما يسطرون، نون کی قسم، قلم کی قسم، اس کے لکھے ہوئے تحریر کی قسم، یہ قلم ہے کون؟ تو خود علماء فرماتے ہیں نبی نے کہا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تو قلم سے کوئی
कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत मुराद है। अब आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर नबी कलम कैसे हो गए? फिर एक जगह नबी फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया है। आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर कलम भी नबी है, लौह भी नबी है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कहूंगा मैं समझाने के लिए तैयार हूं, जब तक मैं समझा नहीं लूंगा तब तक मैं हटूंगा नहीं। सुने, कलम नबी है, लौह नबी है। ये नबी ने फरमाया सबसे पहले कलम को अल्लाह ने पैदा किया, सबसे पहले लौह को। और लौह और कलम, लौह मतलब तख्ती, लौह मतलब कापी जिस पे लिखा जाए, वो तख्ती है जिससे लिखा जाए, वो कलम है। अब कलम नबी फरमाते हैं अल्लाह ने पहले कलम को पैदा किया, लेकिन कलम से भी मुराद मुस्तफा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने लौह को पहले पैदा किया, लौह से भी मुराद मुस्तफा है। लेकिन आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर एक ही चीज तख्ती हो और एक ही चीज कलम हो, ये बात समझने के लायक नहीं है। कैसे समझा जाए कि एक ही चीज कलम बन जाए, एक ही चीज कभी तख्ती हो कभी कलम हो? तब तक अल्लामा मुजीबुल्लाह साहब बोल बैठे यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्तफा कलम भी है, मुस्तफा लौह भी है। वो कैसे? तो सुनो, जब रब से लेना होता है तो मुस्तफा तख्ती बन जाते हैं, और जब उम्मत को देना होता है मुस्तफा कलम बन जाते हैं, मुस्तफा कलम बन जाते हैं। लेकिन एक बात और सुने, नबी फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया है। यहाँ अर्श बुलंदी के माने में है, यहाँ अर्श बुलंदी के माने में है। आप कहोगे अर्श ऊपर है, लेकिन मैं कहूंगा कुरान कहता है कि अर्श नीचे है, मुस्तफा ऊपर है। क्या मेराज की रात देखा नहीं? आका जब चले हैं मेराज में तो आका चले, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा नीचे, चौथा नीचे, पांचवा नीचे, छठा नीचे, सातवां नीचे, सिदरा नीचे, अर्श नीचे। मुस्तफा ला मकान में पहुंच गए, तो मुस्तफा जब ला मकान में पहुंचे तो अर्श यहाँ हदीस से मुराद वो अर्श नहीं है, अर्श से मुराद मुस्तफा की जात है। सबे मेराज सब नीचे, मुस्तफा सबसे ऊंचे है। अब सुनो, एक जगह हदीस पाक में आका फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूह, अल्लाह ने सबसे पहले रूह को पैदा किया है। तो रूह से भी मुराद मुस्तफा की जात है, मुस्तफा की जात है। रूह से मुराद मुस्तफा की जात है। क्यों? जैसे कि आपने देखा ये रुमाल है, इसमें ताना और बाना है, ये रुमाल है, एक कपड़ा है, ये कपड़ा कहां से बना? आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर हो सकता है इसमें रुई मिली हो। मैं कहूंगा ठीक है, अगर इसमें रुई इसमें मिली हुई हो, अगर रुई को जम किया गया हो तो आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर ये रुई है क्या? मैं कहूंगा रुई भी एक पेड़ में फूल की तरह पैदा होने वाली एक चीज है। रुई वो भी दाना जमीन में पड़ा है तो दाने से पेड़ निकला, पेड़ में फिर फूल लगे हैं और उसी फूल में रुई की शक्ल है। अब आप देखो मुसलमानों, आप देखो रुई है और रुई के अंदर भी दाना है, रुई के अंदर भी दाना है। दाने से पेड़ निकला, पेड़ में रुई का फल है और उस रुई के अंदर भी दाना है। अब दाना को दाना लोग समझते हैं, दाना को दाना लोग समझेंगे, दाना को दाना लोग बावर करेंगे, दाना के दाना लोग बावर कराएंगे। अब नीचे भी दाना है, नीचे भी दाना, और दाने के सीने को चेड़ कर जब पेड़ निकला है, उस पेड़ पे जब फूल पत्ते लगे हैं तो उससे भी एक फल निकला जिसे हम और आप रुई कहते हैं। लेकिन रुई के अंदर भी दाना होता है, इब्तदा भी दाना, इंतहा भी दाना, इब्तदा भी दाना, इंतहा भी दाना। अब दाना समझेंगे, दाना का मतलब क्या है? नीचे भी दाना, ऊपर भी दाना, जड़ में भी दाना, ऊपर भी दाना। अब दाना दाना है। अब लोग कहते हैं ये मुस्तफा अव्वल भी कैसे हो सकते हैं, मुस्तफा आखिर भी कैसे हो सकते हैं? यार ये रुई के दाना ने बता दिया, जो दाना नीचे है वही दाना ऊपर भी है। पता चला जो बीच में है उधर दाने की निस्बत इधर, इधर दाने की निस्बत उधर, दोनों तरफ दाना है। एक ही चीज अव्वल है, एक ही चीज आखिर है। तो मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर भी है, मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर है। अब मुस्तफा रूह कायनात है, मुस्तफा रूह कायनात है। मुस्तफा है तो जमीन है, मुस्तफा है तो आसमान है, मुस्तफा है कायनात का वजूद है, मुस्तफा है दुनिया है, मुस्तफा है बरगो समर है, मुस्तफा है चांद सूरज है, मुस्तफा है तो कायनात का वजूद है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने पूरी कायनात को नबी के नूर से पैदा किया है, नबी के नूर से बनाया। तो मानना पड़ेगा जब पूरी कायनात नबी के नूर से है तो कायनात के जर्रे जर्रे में मुस्तफा का नूर मौजूद है।
मुस्तफ़ा का नूर मौजूद है, मुस्तफ़ा का नूर कायनात के जर्रे जर्रे में है, और मुस्तफ़ा इसी तरह कायनात की जान हो गए। तो हदीसों में तत्बीक हो गई है सारी चीजों से। कलम भी मुस्तफ़ा है, लौह भी मुस्तफ़ा है, नूर भी मुस्तफ़ा है, और अर्श भी मुस्तफ़ा है, अक्ल भी मुस्तफ़ा है, और रूह भी मुस्तफ़ा है। अब सुनो मुसलमानों, उसी मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी हदीस सुने। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान व अमल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। आपके हमारे आका फरमाते हैं, ए लोगों, जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल किया, मन क़रअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा व अमल बिमा फीह, और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उल्बिस वालिदाहु ताजा, उसके माँ बाप को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा, एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी, जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। मेरे आका के प्यारे दीवानों, गौर करो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया। आज इस मदरसे से तलबा फारिग हो रहे हैं आलमियत की दस्तार लेकर के, हिफ्ज़ो क़िराअत की दस्तार लेकर के। उन्होंने, बच्चों ने क्या किया है? कुरान को पढ़ा और समझा। बच्चों ने क्या किया है? कुरान को सीने में महफूज किया। बच्चों ने क्या किया है? कुरान को तजवीद के जरिए और तरतील के साथ पढ़ने की कोशिश की है। कुरान सही तरीके से पढ़ने आ गया है, हर्फ को हर्फ समझ करके, कहाँ गुन्ना है, कहाँ मद है, कहाँ तनवीन है, कहाँ हरकत बिन गुन्ना है, कहाँ हरकत बिन इल्गाम है, कहाँ मुतकाबिलन है, कहाँ मुतकारिबैन है, क्या क्या है, ये सब क़िराअत में बच्चों ने पढ़ लिया है। और पढ़ करके जब तालीम को मुकम्मल कर लिए तो उन्हें दस्तारे क़िराअत से नवाजा गया। जब कुरान को मुकम्मल सीने में बसा लिया है, उन्हें दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा गया। और जब कुरान के मानी मफ़ाहीम समझने के लायक हो गए, उस्ताद ने उन्हें समझा दिया, इस कायदे से ये तर्जमा होगा, इस कायदे से ये मफ़हूम निकलेगा। जब बच्चे इस लायक हो गए, उन्हें दस्तारे आलमियत से नवाजा गया। अब नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा वो चाहे आलिम हो, जिसने कुरान पढ़ा चाहे वो हाफिज हो, जिसने कुरान पढ़ा चाहे वो कारी हो, और उस पर अमल किया, नबी फरमाते हैं, उसके माँ बाप को क़यामत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चाँदो सूरज से बढ़कर होगी, जिसकी रोशनी चाँदो सूरज से बढ़कर होगी। आज कुछ लोग कह देते हैं, हाफिज बनाने से क्या फायदा, कारी बनाने से क्या फायदा, आलिम बनाने से क्या फायदा। आलिम बनाएंगे बेटा गरीब हो जाएगा, कारी बनाएंगे बेटा गरीब हो जाएगा, हाफिज बनाएंगे बेटा गरीब हो जाएगा। जमाने के लोग कहते हैं, यार हाफिज बनेगा तो कितना कमाएगा, 5,000 6,000 7,000 रुपया, उससे ज्यादा क्या कमाएगा। हाफिज और कारी बनेगा, उससे ज्यादा क्या कमाएगा। लेकिन आओ लोगों, ये तालीम जो होती है ये दौलत के लिए नहीं है, ये सरवत के लिए नहीं है, ये दुनिया हासिल करने का जरिया नहीं है। ये जो आलिम हाफिज कारी लोग बनते हैं, बच्चे हमारे बनते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, ये दौलत के हुसूल के लिए नहीं, ये सरवत के हुसूल के लिए नहीं, ये मालो मनूल के लिए हुसूल के लिए नहीं है। ये तालीम जो हासिल की जाती है अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी को और बहके हुए लोगों को वहदहु ला शरीक के रास्ते पे लाकर खड़ा करने के लिए तालीम हासिल की जाती है। सुनो, आज आप कहते हो क्या फायदा है, क्या फायदा हाफिज बनाने से, क्या फायदा है कारी बनाने से, क्या फायदा है आलिम दीन बनाने से। सुनो मुसलमानों, एक इसी तरह का ऐसा बाप हो जिसके 4 बेटे हो। बाप ने सोचा, यार मेरे 4 बेटे हैं, जो सबसे टैलेंट है, जो सबसे अक्ल शऊर वाला है, उसे चलो बेहतरीन किस्म का डॉक्टर बना दिया जाए। बाप ने सोचा, जो सबसे ज्यादा अक्ल फरासत वाला है उसको डॉक्टर बना दिया जाए। बाप ने सोचा, जो दूसरा नंबर का बच्चा है वो उससे कुछ कमजोर है, चलो उसको LLB करा दिया जाए, वकील बना दिया जाए। और जो तीसरे नंबर का बच्चा है वो दोनों से कुछ कमजोर है, चलो उसको IAS बनाने की तैयारी की जाए। अब बाप ने तीनों को सोच लिया। और जो सबसे छोटा बच्चा था, बिल्कुल कमजोर था, उसकी कोई आंख खराब है, किसी के हाथ खराब है, किसी के पैर में कुछ उज्र है। अब बाप ने सोचा, 3 बच्चे अच्छे हैं, निराले हैं, अक्लो फहम वाले हैं, सही सलामत हैं, किसी को डॉक्टर बना दो, किसी को वकील बना दो, किसी को IAS बना दो। और जो सबसे छोटा है, देखने में कमजोर है, लगता कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, आंखें उसकी कमजोर है, हाथ कमजोर है, पैर कमजोर है, दिमाग कमजोर है। सोचा, चलो यार ये थोड़ा भचक के भी चलता है, ये थोड़ा लंगड़ा के चलता है, इसकी आंखें थोड़ी तिरपट है, इसकी जबान कुछ टेढ़ी है, इसका मुंह कुछ टेढ़ा है, चलो अब इसको कॉलेज में नहीं, इसको IAS नहीं, इसको PCS नहीं, इसको LLB नहीं कराना है। चलो इस बच्चे को अल्लामा मुजीबुल्लाह के बारगाह में भेज दिया जाए और कहा जाए, हुजूर मेरा बच्चा जिस लायक हो, आलिम बनने के लायक हो आलिम बना दीजिए, कारी बनने के लायक है कारी बना दीजिए, हाफिज बनने के लायक हाफिज बना दिए। जिस बच्चे को माँ बाप ने सबसे ज्यादा कमजोर समझा था उसको मदरसे में ला करके रख दिया है। अब आलिम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हाफिज अपनी मेहनत कर रहे हैं, कारी अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में गए हैं, एक बच्चा डॉक्टर बन गया, एक बच्चा वकील बन गया, एक बच्चा IAS बन गया है,
है। वो तीनों बच्चे दुनिया ने देखा बड़े कामयाब हो गए। डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, वकील पैसा कमा रहा है, IAS पैसा कमा रहा है। और जिस बच्चे को कमजोर समझा गया था, जिसको हजरत अल्लामा मुजीबुल्लाह की बारगाह में भेजा गया था, अल्लामा तारिक साहब के हवाले किया गया था, हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब के हवाले किया गया था, उस बच्चे पे इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, वो आलिम कुरान बना या हाफिज कुरान बना या कारी कुरान बना। अब वो बच्चा भी फारिग हुआ है। फारिग होने के बाद वो बच्चा अपने घर गया है। वो बच्चा अपने घर गया, घर जाने के बाद उसके सारे भाई भी हाजिर है, वो बच्चा भी हाजिर है, डॉक्टर है वो भी नमाजी है, LLB किया हुआ वकील है वो भी नमाजी है, IAS है वो भी नमाजी है, बाप है वो भी नमाजी है, हाफिज कुरान है वो भी नमाजी है, कारी कुरान है वो भी नमाजी है। बैठे सब आपस में गुफ्तगू कर रहे हो और अचानक मस्जिद से जैसे आवाज आई है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जैसे मस्जिद से आवाज आई है, वहदानियत की सदा लगाई गई है, तकबीरे खुदाबंदी को बुलंद किया गया है, तकबीरे रिसालत को बुलंद किया गया। जैसे मस्जिद से हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज बुलंद हुई है, सब अपने घर से निकले हैं। वो बेटे निकले, जो डॉक्टर वो भी निकला, जो वकील है वो भी निकला, जो IAS है वो भी निकला, बाप भी निकला, जो हाफिज कुरान है वो भी निकला। सबके सब मस्जिद में पहुंचे हैं, एक ही दरवाजे से सब लोग अंदर गए हैं। अब वजू कर करके सुन्नतें पढ़ पढ़ करके इंतजार कर रहे हैं। अब मुकब्बिर तकबीर कहेगा, अब अकामत बोली जाएगी। अब मुकब्बिर तकबीर बोल रहा है, अब मुकब्बिर तकबीर कह रहा है। जैसे तकबीर हुई है और जैसे कद कामत सलाह की सदा बुलंद हुई है, सारे लोग सब तो सब खड़े हो गए हैं, सब बंदी हो गई है, सब तो लग गई है। लेकिन डॉक्टर भी इधर उधर चेहरा घुमा रहा है, इंजीनियर भी चेहरा घुमा रहा है, IAS भी चेहरा आंखें इधर उधर कर रहा है कि मुसल्ला इमामत खाली पड़ा है, जाएगा तो कौन जाएगा? डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, IAS नहीं, बाप नहीं, यार मुसल्ला इमामत पे जाएगा कौन? दुनिया कहती है हाफिज कामयाब नहीं है, दुनिया कहती है कारी कामयाब नहीं है, दुनिया कहती है हाफिज कुरान कामयाब नहीं है। यार जिसको जमाने में कामयाब समझा वो डॉक्टर पीछे खड़ा ताक रहा है, जिसको दुनिया कामयाब समझती है वो वकील पीछे खड़ा है, जिसको दुनिया कामयाब कहती है वो IAS पीछे खड़ा है। मुसल्ला इमामत पे जाएगा तो कौन जाएगा? डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, LLB करने वाला नहीं। अगर मुसल्ला इमामत पे जाएगा तो कोई और नहीं जाएगा, बल्कि अल्लामा मुजीबुल्लाह ने जिसे कारी कुरान बनाया, हाफिज कुरान बनाया है, आलिम कुरान बनाया, वही कारी कुरान मुसल्ले पे जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाएगा वही हाफिज कुरान जाएगा, जाएगा वही कारी कुरान जाएगा, जाएगा वही आलिम कुरान जाएगा। यार जिसको आपने कामयाब समझा है वो तो पीछे हाथ बांध के खड़ा है और कह भी रहा है जैसे नियत का वक्त आया है, वो जैसे इमाम ने तकबीर बुलंद की है, जैसे तकबीर बुलंद की है, जैसे अल्लाह अकबर कहा, मुक्तदी भी कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले नियत कर रहे हैं। क्या नियत किया है? जिसको सब लोगों ने कमजोर समझा वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा है। अब भाई जो डॉक्टर वो भी कह रहा है, पीछे इस इमाम के वकील भी कह रहा है, पीछे इस इमाम के डॉक्टर भी कह रहा है, पीछे इस इमाम के IAS भी कह रहा है, पीछे इस इमाम के। यार वो डॉक्टर जिसको जमाने में कामयाब समझा, जब मस्जिद में खड़ा नमाज के लिए जो सारी इबादतों में सबसे आम इबादत है, उसका इमाम जब बना, वही कमजोर बच्चा है, वही कमजोर बच्चा है जिसको बाप ने कमजोर जाना, माँ ने कमजोर जाना, भाइयों ने कमजोर जाना। अगर मुसल्ला इमामत पे गया है वही बच्चा गया है, वही बच्चा गया है। अब डॉक्टर उसके पीछे है, इंजीनियर उसके पीछे है, IAS उसके पीछे है। अब आप बताओ कामयाब कौन है? जहां पे उस हाफिज कुरान के कदम पड़े हुए हैं, वहां पे बड़े बड़े लोगों के सर गिरे हुए हैं, वहां पे बड़े बड़े लोगों के सर गिरे हुए हैं। कामयाब कौन है? और यार सुनो, और मुसलमानों सुनो, बड़ी बातें कर लेते हो। इन उलमा को देखो, उलमा से प्यार करने की कोशिश करो, उलमा के कदर को समझो, उलमा की अहमियत को समझो। आज तो गांव का बड़का आदमी हम कहें सलाम करेंगे, मौली खुद हमें सलाम करें। वाह वाह, बेशक बेशक। हम चंदा देते ना 1 लाख, ताकर मौली साहब हमें चूमे ना। मौली साहब चंदा मैं देता हूं, थोड़ा भी गड़बड़ किए तो चंदा बांध। और अगर इमाम तैयार हो जाए, अगर आलिम ठान ले, तो जनाजा तुम्हारा रखा का रखा रह जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आलिम ठान ले
آپ کے گھر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, آپ کے گھر نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں, آپ کے گھر میلاد پڑھنے والا کوئی نہیں, آپ کے گھر اذان دینے والا کوئی نہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے, زمانہ کتنی تیاریاں, کتنی ترقی کر لی ہے, زمانے کے لوگ کتنی ترقی کر لیے کہ چاند پہ کمن ڈال رہے ہیں, چاند میں پہنچ رہے ہیں, چاند کے اوپر کھیتی کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور ہم مسلمان تو اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں کہ انہیں جنازے کی نیت تک یاد نہیں ہے. اب جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. ایک آدمی آ کے دھیرے سے میرے کان میں کہہ رہا, مولانا صاحب, ارے ہو مولانا آج نکاح پڑھانا ہو, جنازہ پڑھانا ہے نا, تو بالکل تو نیت بتائیے نہیں کہ لڑکا تو مولوی صاحب جاہل بنا ہے. شرم نہیں آئی اس کو, عالم کے بارے میں کہہ رہا جاہل ہے, اسے نیت یاد نہیں تو بے شرم. اگر اسے نیت یاد نہیں تو بھی تو مسلمان ہے, تجھے نیت یاد کیوں نہیں؟ گیا باپ کے جنازے میں, گیا بھائی کے جنازے میں, گیا ماں کے جنازے میں, گیا پڑوسی کے جنازے میں. لعنت ایسی زندگی پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور جنازے میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے, دعا یاد نہیں ہے, دعا یاد نہیں, گانے یاد ہیں, فلم کی سٹوری یاد ہے, ڈرامے یاد ہے, سچن نے کتنے چھکے مارے یاد ہے, گنگولی نے کتنے چوکے مارے یاد ہے, ہاں سب یاد کر لیا. اگر نہیں یاد ہے تو جنازے کی نیت نہیں یاد ہے, نہیں یاد ہے تو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے, نہیں یاد ہے تو 10 سورہ نہیں یاد ہے, نہیں یاد ہے تو 5 کلمے نہیں یاد ہے. لعنت ہے اسی زندگی پہ کہ مسلمان کو 10 سورہ یاد نہ ہو, مسلمان کو کلمے یاد نہ ہو. اور انگلی اٹھانا ہوگا نا, اگر امام صاحب ایک کو نماز میں اگر نہیں پہنچے فجر میں تو پورے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹا جائے گا. آج مولوی صاحب دیکھا نا, رتیا پھر چل رہی نا, سوتی گئی نا. ارے مولوی صاحب ایسے ہوتے ہی کیا ہے, دوسروں کو تقریر کر کے, دوسروں کو سمجھاتے, خود ہی جا کے فجر میں سو گئے. یار کبھی ہم نے سوچا اگر عالم ایک وقت امامت میں نہیں پہنچا, نہ جانے کیا مجبوری آ گئی ہے, نہ جانے کون سا عذر پیش آ گیا ہے, تو اس عالم کی جگہ جگہ برائی کر رہے ہو. کبھی چائے کی دکان پہ, کبھی پان کی دکان پہ, کبھی نکڑ پہ, کبھی اس کے ہاں, کبھی اس کے ہاں. کبھی تم نے سوچا یار, سوچا کبھی کہ جس عالم کی برائی کر رہے ہو, صرف ایک وقت اگر مسجد میں نہیں پہنچا ہے تو جگہ جگہ برائی کر رہے ہو. کبھی اپنے بیٹے کی برائی کی, کبھی اپنی بیوی کی برائی کی, کبھی اپنے باپ کی برائی کی, کبھی اپنے بھائی کی برائی کی, کبھی اپنے بہن کی برائی کی. جو بہن کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے, جو بیٹا کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو باپ کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو ماں کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا گاؤں میں کوئی آدمی گھوم گھوم کے کہا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں, میرا باپ نماز نہیں پڑھتا؟ یار علماء کی طرف انگلی اٹھانے کے پہلے اپنے آپ پر تو دیکھو, آپ کے گھر کے سارے فرد نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ علماء پہ انگلی نہ اٹھائیں. ان علماء کا احسان ہے, احسان مانو, احسان کہ علماء اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کی زندگی شریعت کے مطابق کچھ تو کچھ ضرور گزر رہی ہے. لیکن اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہماری زندگیاں جانوروں سے بدتر ہو جاتی, بدتر. آپ نے دینی تعلیم کو سمجھا کیا ہے؟ کیا سمجھ رکھا آپ لوگوں نے دینی تعلیم کو؟ یار سمجھیں دینی تعلیم کو. دینی تعلیم ہے کیا؟ آج کچھ نوجوان ہمارے کہتے ہیں مولانا بس وہی قرآن وہی حدیث, وہی فقہ, وہی اصول فقہ, وہی حدیث, وہی اصول حدیث, اسی کے چکر میں پڑے ہو. سائنس نے کتنا کمال کر لیا, کبھی غور کیا سائنس پہ؟ ہم نے کہا یار کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ بڑی بڑی باتیں کر رہا, اچھی اچھی باتیں کر رہا, سائنس کی بڑی تعریف کر رہا, کیا بات ہے؟ کہا حضور ہم سائنس پڑھتے ہیں. ہم نے کہا سائنس نے کیا کر لیا؟ کہا سنیں حضور, سائنس نے تو اتنا کمال کر لیا ہے نا, سائنس نے ایسی کھوج لگا دی ہے جو آج تک کسی نے کھوج نہیں لگائی ہے, آج تک پتہ تک نہیں لگایا. ہم نے کہا سائنس کی کوئی تحقیق بتا دے, سائنس کی کوئی کھوج بتا دے, سائنس کی کوئی بات ہمیں بتا دے. سائنس پڑھنے والے نوجوان نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, سائنس اتنے کمال پر ہے کہ سائنس نے کھوج لگا لیا ہے, سائنس نے پتہ لگا لیا ہے, سائنس نے تحقیق کر لی ہے. ہم نے کس بات کی؟ کہا دیکھیں ایک دن میں پڑھ رہا تھا, پتا چلا سائنس کے ذریعے جب ریسرچ کیا گیا, پتہ لگایا, کھوج لگائی گئی, تحقیق کی گئی ہے, تو سائنس کا کہنا ہے ایک زمانہ آئے گا یہ آسمان پھٹ جائے گا, ایک زمانہ آئے گا یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے, یہ زمانہ آئے گا زمینیں پھٹیں گی, ایک زمانہ آئے گا جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. ہم نے کہا یار سبحان اللہ, بڑی اچھی بات کی ہے, کس نے پتہ لگایا؟ کہا سائنس نے کھوج لگائی ہے. سائنس پڑھنے والا کہتا ہے کہ سائنس کا کہنا
कहना है एक वक्त आएगा आसमान फटेगा, एक वक्त आएगा सितारे टूट जाएंगे, एक वक्त आएगा समंदर में आग लग जाएगी, एक वक्त आएगा कब्र फट जाएंगी, जमीन फटेगी। हमने कहा ओ साइंस के पढ़ने वाले, इस तेरे साइंस का वजूद कब से हुआ है? उसने कहा हुजूर बस यही हुआ होगा 200 साल, 250 साल, 300 साल, उससे पहले तो साइंस का वजूद नहीं था। हमने कहा जिस साइंस की तू बात कर रहा है ना, कि साइंस ने खोज लगा लिया है, साइंस ने तहकीक कर ली है कि आसमान फटेगा, आसमान बिखर जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, जमीन फट जाएगी, समंदरों में आग लग जाएगी। सुन ले, तेरे साइंस ने आज बताया है, लेकिन ये बात तो 1500 साल पहले मेरे परवरदिगार ने बता दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरे परवरदिगार ने बता दिया है। साइंस पढ़ने वाला नौजवान कहता है कहाँ है हुजूर? हमने कहा कुरान को पढ़, कुरान में सब कुछ मौजूद है, कुरान में क्या नहीं है, क्या नहीं है। ये और बात है कि वहां तक पहुंच होनी चाहिए, उतना इल्म होना चाहिए, उतना कुशादा ज़हन होना चाहिए। कुरान की बातें सब कोई नहीं समझ पाता है, समझने वाले समझते हैं, असातिज़ा समझाते हैं, ऐसे ऐसे उलमा समझाते हैं, ऐसे ऐसे मुफक्किरीन समझाते हैं, ऐसे ऐसे मुदब्बिरीन समझाते हैं। और कुरान में क्या नहीं है? उस नौजवान ने कहा हुजूर कुरान में कहा ये सब बातें हैं। हमने कहा कुरान को पढ़ोगे तब न समझोगे, कुरान पढ़ोगे तब न समझोगे कुरान में कहा है। कहा थोड़ा हमें भी बता दीजिए कुरान कहाँ है, कुरान में कहाँ है, कौन सी आयत से साबित है? हमने कहा दूर नहीं है, आ मैं तुझे कुरान बताता हूँ। मैं पहले उसको पकड़ा, चल कुरान तुझे बताता हूँ, चल कुरान तुझे पढ़ाता हूँ। कहा हुजूर बताएं कहाँ है? हमने कहा कुरान रखा है क्या? कहा हाँ मौलाना साहब हमारे मोबाइल में कुरान है। हमने कहा ठीक है ओपन कर, उसको खोल। अब जब कुरान को खोलता है, हमने कहा 30वां पारा निकाल, 30वां पारा निकाला। हमने कहा देख उसमें एक सूरह है जिसे सूरह इन्फितार कहा जाता है, एक सूरह है जिसे सूरह तकवीर कहा जाता है, निकाल उस सूरह को। फौरन उसने सूरह इन्फितार को खोल दिया। मैंने कहा पढ़ना आता है? कहा हजरत पढ़ने आता है। हमने कहा पढ़ के बता। अब वो पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। कहा हुजूर हो सकता मुझसे गलती हो जाए, मेरी आवाज दुरुस्त नहीं है, मेरी किरत दुरुस्त नहीं है, हुरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं है, आप ही पढ़ना क्या लिखा है। हमने कहा देख अल्लाह फरमाता है इदस समा फतरत वइदल कवाकिबु तसरत वइदल बिहारु फुज्जिरत वइदल कुबूर बु'थिरत। अब कुरान पढ़ा मैंने, झूमने लगा नौजवान। कहा हुजूर आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। हमने कहा मेरे असातिज़ा का करम है, मेहनत जो तलबा करते हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी देता है। अब तालिब इल्म मदरसे में आकर सिर्फ सोएगा, 2 वक्त का खाना खाएगा और सिर्फ सोएगा तो उसे इल्म नहीं हासिल हो सकता है। जो पीठ पीछे अपने असातिज़ा की बुराई करेगा उस तालिब इल्म को इल्म नाफे नहीं मिल सकता है। यार अगर इल्म नाफे लेना है तो उलमा के जूतियों को साफ करो, उलमा की खिदमत करो, अपने असातिज़ा के पैरों को दबाओ, अपने असातिज़ा से प्यार करो। अल्लाह की कसम अगर उस्ताद के दिल से दुआ निकल गई वो तालिब इल्म कामयाब हो जाता है, वो तालिब इल्म कामयाब होता है, वो पढ़ने वाला बच्चा कामयाब होता है। कहा हुजूर थोड़ा इसका तर्जुमा तो बता दें। हमने कहा सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है इदस समाउन फतरत, जब आसमान फट पड़े, जब आसमान फट पड़े, व इदल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे टूट पड़े, व इदल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर मिल जाएं, व इदल कुबूर बु'थिरत, जब कब्र फट जाएं। इतना सुनना था, नौजवान चूमने लगा, मेरे हाथ को पकड़कर चूमने लगा। कहा हुजूर कुरान में ये भी है। हमने कहा यही नहीं, सुन तूने कहा ना कि एक वक्त आएगा जब समंदरों में आग लग जाएगी। सूरह तकवीर है, आयत नंबर गालिबन 8 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वइदल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, समंदर सुलगा दिए जाएं, जब समंदर भड़का दिए जाएं, समंदर में आग लगेगी, ये रब का फरमान है। कब्र फटेंगी, ये रब का फरमान है। आसमान फटेगा, ये अल्लाह का फरमान है। सितारे टूटेंगे, ये अल्लाह का फरमान है। दरियाएं मिलेंगी, अल्लाह का फरमान है। अब वो नौजवान बता तेरे साइंस के क्या तरक्की की है? उसने कहा हुजूर मान लिया कि कुरान में वो सब कुछ है। आज जिस चीज की तहकीक साइंस ने पेश कर दी है उसको परवरदिगार ने 1500 साल पहले बता दिया है। और तब तक वो नौजवान बोल बैठा हुजूर उलमा कुछ बातें करते हैं। हमने कहा क्या बातें करते हैं? कहा उलमा कहते हैं कि साइंस में तो बहुत कमाल कर लिया है, लेकिन हुजूर मैंने जब जलजला आया था 2015 में ना, जब भयानक जलजला आया था ना, तो सारे उलमा बोल रहे थे लोगों के गुनाहों की वजह से, लोगों की गुनाहों की वजह से जमीन हिल रही है। हमने कहा हाँ हदीस पाक है, लोगों के गुनाह जब फैल पड़ते हैं ना तो जमीन हरकत में आती है। अल्लाह हुक्म देता है जमीन हिल जाती है और हिला करके लोगों के कलेजे को दहला देती, हिला देती है। लेकिन सुनो, उसने कहा हुजूर
हुजूर लेकिन साइंस का कहना है, साइंस का कहना है ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, साइंस का कहना है। मैंने कहा क्या कहना है? कहा साइंस का कहना है जमीन के नीचे कुछ ऐसे प्लेट हैं और उसके नीचे आग भी है। जब आग अपनी हरारत तेज कर देती है तो जमीन के नीचे के प्लेट जो होते हैं पिघलने लगते हैं, और जब प्लेट पिघलते हैं और पिघल कर जब पानी बनकर के प्लेट बहने लगते हैं तो जमीन हरकत में आ जाती है। हमने कहा तेरी साइंस अपने जगह है, साइंस की तहकीक अपने जगह है, लेकिन मेरा कुरान कहता है, मेरा कुरान कहता है, मेरा रब फरमाता है, परवरदिगार फरमाता है, इसी जमीन के बारे में अल्लाह फरमाता है, इसी जमीन के बारे में अल्लाह फरमाता है, इसी खाक के बारे में अल्लाह फरमाता है, जिस जमीन पे तू खड़ा है इस जमीन के बारे में परवरदिगार फरमाता है। कहा क्या? हमने कहा सुन, जब अल्लाह ने जमीन को बिछाना चाहा तो ये जमीन कहां बिछी है पता है तुझे? कहा हमें नहीं पता है। हमने कहा सुन, अल्लाह ने पानी को पहले पैदा किया और पानी के ऊपर इस जमीन को बिछा दिया, और जब जमीन को पानी के ऊपर अल्लाह ने बिछाया, जब जमीन के ऊपर अल्लाह ने पानी के ऊपर अल्लाह ने जमीन को बिछाया तो जमीन ऐसे ऐसे हिलने लगी, ऐसे ऐसे हिलने लगी। तो अल्लाह ने उस जमीन की हरकत को रोकने के लिए, उसकी हरकत को रोकने के लिए अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ों को कील के तौर पे गाड़ दिया। अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ों को रख दिया। कहा ये भी कुरान में है। हमने कहा हाँ यार ये भी कुरान में है। कहा कहाँ है दिखा दें। हमने कहा वो भी देखना चाहते हो? हमने कहा ठीक है उठा फिर कुरान खोल। कहा हमने कहा कहाँ खोल? हमने कहा खोल तो। कहा खोल दिया। कहा निकाल 30वां पारा। उन्होंने निकाल दिया। हमने कहा पढ़ पहला पेज। अल्लाह फरमाता है अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला अल्लाह फरमाता है अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, हमने जमीन को बिछौना बना दिया। अल्लाह ने जमीन को बिछा दिया। अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है व नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला उतादा, और जब जमीन को बिछा दिया, जमीन को बिछा दिया और जब जमीन हिलने लगी है वल जिबाला उतादा, तो पहाड़ों को कील के तौर पे जमीन पे ठोक दिया। आज जलजले इसलिए आ रहे हैं, जगह जगह पहाड़ों को काटा जा रहा है, जगह जगह पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके उसमें से लोहा निकाला जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके उसमें से कोयला निकाला जा रहा है। मैंने कहा इस साइंस का भूत तेरे ऊपर सवार है। सुन ले, अगर जमीन हिलती है उसकी एक वजह यह भी है, गुनाह अपने जगह हक है, गुनाह की वजह से अजाब आता है, शराब की वजह से अजाब आता है, माँ बाप की नफरमानी की वजह से अजाब आता है, गुनाह जब हद से बढ़ जाए अल्लाह का अजाब आता है। लेकिन सुन ले ये भी है कि जब पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, पहाड़ों को खोदा जाएगा और जब कील बाहर निकल जाएगी तो जमीन हिलेगी जरूर, जमीन हिलेगी जरूर, जमीन हिलेगी जरूर। तो आज जो जमीन हिलती है ना, आज जगह जगह पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। मैं जिस वक्त नागपुर में पढ़ा रहा था, मैं देखा भी जा करके ऐसे ऐसे पहाड़ियां हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है, तोड़ तोड़ के कोयला निकाला जा रहा है, तोड़ तोड़ के लोहा निकाला जा रहा है। जब पहाड़ टूटेंगे तो जमीन हरकत में आएगी जरूर, जब पहाड़ खोदे जाएंगे जमीन हरकत में आएगी जरूर। उसने कहा और भी कुछ बताएंगे। हमने कहा ले सुन ले, और भी बात मैं बता दे रहा हूं। तेरे साइंस ने जो कमाल किया है, सुन मेरे कुरान में क्या है, सुन कुरान में क्या है। ए लोगों, आज हम कुरान से दूर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो इतने दीवाने हैं, जब तक सुरती खैनी नहीं खाएंगे उनका पेट साफ नहीं होगा, जब तक गुलमंजन नहीं लगाएंगे पेट साफ नहीं होगा। यार तुझे खैनी की इतनी फिक्र है, सुरती की इतनी फिक्र है, गुलमंजन की इतनी फिक्र है, कभी फिक्र किया कि उठ करके पहले वजू करके नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर ली जाए? फिक्र किया कभी? कभी दिल में आया आज पहुंचते आलिम साहब ताबीज बना दम, किस लिया? घर में बरकत नहीं हो रही है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, ओ हमारी बच्ची ने बड़ी परेशान, उसको भूत सता रहा है, उसको आसे पकड़ रहा है। यार जब घर में तू गाना बजाएगा तो भूत नहीं तो रहमत के फरिश्ते आएंगे। हाँ क्या आएंगे? आज के नौजवानों को देगा ना, अरे बाप रे बाप, ऐसा ऐसा बाल रखता है जैसे लगता है छप्पर, 2 तल्ला 3 तल्ला बाल कटवा रहा है। और कहीं कहीं तो मैंने देखा डॉग कट, कुत्ता कट, बैल कट। जब मैंने बोला बैल कट नौजवान को बुरा लग गया। जैसे मैं उतरा तकरीर करके आया, कहा हुजूर आपने बड़ा अजीब गजीब बोल दिया। मैंने कहा यार, कहा आपने कहा कि बैल कट बाल है, मेरे भी तो कटे। हमने कहा हमसे मत पूछ, अपने दादा से पूछ, पूछ अपने दादा से। वो क्या जानेंगे क्या है?
ہم نے کہا مجھ سے بہتر تیرے دادا جانتے ہیں بیل کٹ ہے کیا، بیل کٹ ہے کیا؟ کہا دادا جان جا، ہم نے کہا دادا تو نہیں ہے. ہم نے کہا کوئی بوڑھا انسان ہو پکڑ کے لاؤ. تب تو بغل میں بوڑھے انسان تھے. کہا چچا ادھر آؤ، چچا ادھر آؤ. آئے. کہا کہ مولانا صاحب کیا بات ہے؟ ہم نے کہا تھوڑا بیل کٹ بتائیں گے. بولے کیا؟ ہم نے کہا کسی زمانے میں جب بیل لوگ رکھتے تھے تو اس کا بال کس طرح کاٹتے تھے، کس طرح کاٹتے تھے؟ بوڑھے انسان نے کہا مولانا بابو بادرس لیے نہ جیسے لڑکوا کا بلوا کٹل بنا ایسے بیلن کا بلوا کٹات رہے. آج کا نوجوان بیل کٹ بال کاٹ کے یہ ثابت کرتا ہے او مولانا مجیب اللہ میں بھی کسی بیل سے کم نہیں، میں بھی کسی بیل سے کم نہیں. اور نوجوان یہ چھپر بال بند کر دے، یہ مرغا کٹ بال بند کر دے، یہ ڈاگ کٹ بال بند کر دے، یہ بیل کٹ بال بند کر دے. اگر تجھے کٹ کرنا ہے نا تو کٹ کسی بیل کٹ نہ رکھ، کٹ کسی کتا کٹ مت رکھ. اگر کٹ رکھنا ہے نا مرغا کٹ مت رکھ، کٹ رکھنا ہے نا چھپر کٹ مت رکھ. اگر تجھے کٹ رکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کٹ رکھ لے. اگر کٹ رکھنا ہے تو سے پاک کٹ رکھ لے. اگر کٹ رکھنا ہے شیر شبلی جیسا کٹ رکھ لے. اگر کٹ رکھنا ہے امام شافعی کٹ رکھ لے. کٹ رکھنا ہے امام حنبل کٹ رکھ لے. کٹ رکھنا ہے امام اعظم کٹ رکھ لے. یار اگر تجھے کٹ رکھنا ہے تو حسن حسین کا کٹ کیوں نہیں رکھتا؟ اگر کٹ رکھنا ہے تو مولا کائنات کا کٹ کیوں نہیں رکھتا؟ اگر کٹ رکھنا ہے عثمان غنی کا کٹ کیوں نہیں رکھتا؟ اگر کٹ رکھنا ہے عمر فاروق کا کٹ کیوں نہیں رکھتا؟ اگر کٹ رکھنا ہے ابو بکر کا کٹ کیوں نہیں رکھتا؟ اگر تجھے کٹ رکھنا ہے تو پیارے آقا کی سنت کیوں نہیں اپناتا؟ کیوں نہیں اپناتا ہے یار؟ کہاں کھو گئے؟ سنو سنو مسلمانوں، پہلی بار آپ کے ہاں آیا ہوں نا، تھوڑا دل کھول کر کے سن لو. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسی تقریر پسند کرتے ہیں، لیکن میں جس طرح بولتا ہوں اسی طرح بول رہا ہوں. نہ کبھی بدلتا ہوں نہ بدلنے کی کوشش کر پاتا ہوں، کیونکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں تھوڑا دھیرے دھیرے بول پاؤں، لیکن بول ہی نہیں پاتا. پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے، میں دھیرے بول نہیں پاتا. کچھ علماء ہم سے کہتے ہیں بابو تھوڑا دھیرے دھیرے ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا، تھوڑا دھیرے دھیرے ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے، تھوڑا دھیرے دھیرے. مفتی صادق صاحب ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں، وہ بالکل اسٹیل باڈی کے ہیں مفتی صادق صاحب، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ارے یار بابو کب تک اس طرح بولو گے؟ ہم نے کہا جب تک اللہ بھلوا لے گا تب تک بولیں گے، جب تک نبی چاہیں گے تب تک بولیں گے، جب تک اللہ والے چاہیں گے تب تک بولیں گے، جب تک رب کا فضل ہوگا تب تک بولیں گے. جب اس کی مرضی ہوگی، جب اس کا ارادہ ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا. لیکن میں کوشش کرتا ہوں دھیرے بولوں، دھیرے دھیرے سمجھاؤں، لیکن مشکل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا مجھے ہو جاتا ہے، میں دھیرے دھیرے نہیں بول پاتا. اب سنیں مسلمانوں، اب اسی قرآن کے طرف چلتے ہیں جو قرآن ہمارے بچوں نے اپنے سینوں میں بسایا ہے. میرے ایک دوست ہیں مولانا شمشاد احمد مصباحی صاحب، وہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور میں ایک کورس کر رہے تھے تقابل ادیان کورس کر رہے تھے. غور سے سنیے گا، یہ تقریریں آپ کے لیے ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے. یہ جو علماء بیٹھتے ہیں نا، یہ جو علماء اسٹیج پہ بیٹھے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے. اور یہ علماء بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی تو علماء ہماری اصلاح فرما دیں گے. یہ علماء اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو میں بول رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ ان کے پاس علم ہے، جو میں سمجھا رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ ان کے پاس سمجھ ہے. الحمدللہ جب اچھے علماء ہوتے ہیں تو بولنے میں اور مزہ آتا ہے اور اچھا لگتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اگر علماء نہ ہوں میں تنہا نہ جانے کیا کیا بولتا چلا جاؤں، لیکن علماء رہتے ہیں تو دل میں خیال ہوتا ہے اللہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو علماء اصلاح فرما دیں گے، اگر کہیں زبر زیر کی غلطی ہوگی علماء اصلاح فرما دیں گے، اگر کسی تاریخی بات میں غلطی ہوگی علماء اصلاح فرما دیں گے. سنیں ایک آخری بات سن لیں، اس کے بعد میرا وقت ختم ہو جائے گا. جب میرے دوست مولانا شمشاد مصباحی صاحب تقابل ادیان کر رہے تھے، اس وقت وہ نثار العلوم امبیڈکر نگر میں پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ انہوں نے کہا بتایا جگہ اور تقریر کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا، مجھے اشارہ کر کر کے بول رہے تھے مولانا صاحب دیکھیں جب ہم تقابل ادیان کر رہے تھے تو ایک معاملہ بڑا زبردست پیش آیا. ایک عبارت ہم نے دیکھی، ایک جگہ ہم نے ایک بات پڑھی. ہم نے کہا کیا پڑھے حضرت؟ بتا رہے ہیں مولانا صاحب بتاتے جا رہے ہیں، علامہ صاحب بتاتے جا رہے ہیں. کہا سنو، ایک بار فارین میں امریکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بھونچال آ گیا، ایک ایسا زبردست واقعہ آ گیا. لوگ حیران ہو گئے، علماء حیران ہو گئے.
हुआ क्या था, एक अस्पताल के अंदर दो औरतें दाखिल हुई, दो औरतें एडमिट हुई हैं और दोनों का वक्त पूरा हो चुका था। वो क्या थी, हामिला थी, वजह हमल होने वाला था, बच्चा पैदा होने का वक्त था। अब अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह की मशीयत देखिए, अल्लाह की मर्जी देखिए, जब दोनों औरतों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, दोनों को एक ही रूम में रखा गया है और रब की मशीयत देखे, एक ही वक्त में दोनों के बच्चे पैदा हुए, लेकिन इत्तफाक से एक औरत के बदन से लड़का पैदा हुआ और एक औरत के बदन से लड़की पैदा हुई। और पैदा होते ही अभी उन औरतों को पता नहीं चला कि क्या पैदा हुआ, लड़का की लड़की। उससे पहले बच्चों को वॉशिंग रूम में डाल दिया गया। जब वॉशिंग रूम में डाल दिया गया और वॉशिंग रूम से जब वापस लाया गया तो जिसका लड़का था उसे दिया गया, जिसकी लड़की थी उसे दिया गया। तो जब लड़की को लड़की के माँ के हवाले किया गया तो माँ ने इनकार कर दिया, कहा नहीं ए लोगों तुम झूठे हो, मेरे बदन से तो लड़का पैदा हुआ था, तुमने बदल दिया है, रिश्वत लेकर के बदल दिया है, पैसा लेकर के बदल दिया है, मैं तुम लोगों के ऊपर केस करूंगी, मैं तुम लोगों के ऊपर मुकदमा चढ़ाऊंगी। तुमने मेरा बेटा उस औरत को दे दिया है, उसकी लड़की मुझे दे दिया, मेरा लड़का उसे दे दिया। अब समझ लीजिए हंगामा बर्पा हो गया, पूरा अस्पताल खलबली में बिल्कुल सम हो गया है। अब हाल क्या है, डॉक्टर अलग परेशान, नर्स अलग परेशान, लोग अलग परेशान हैं। फैसला करेगा तो कौन करेगा, अब कैसे समझाया जाए। वो औरत मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, कह रही है नहीं लड़की मेरी नहीं है, लड़की उसकी है, मैं लड़की नहीं लूंगी, मैं तुम लोगों पर मुकदमा कर दूंगी, तुमने मेरे लड़के को बदल दिया है। अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़े जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वो भी आ गया, क्या बात है। वो औरत कहती देखो डॉक्टर तुम्हारी नर्सों ने मेरी बच्चे को बदल दिया है, मेरा लड़का उसको दे दिया है, उसकी लड़की मुझे दे दिया है, अब फैसला तुम करो वरना मैं हंगामा मचा दूंगी, मैं कोर्ट तक जाऊंगी इस बात के लिए। अब डॉक्टर भी बिल्कुल सहम गया है, यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब हल कैसे किया जाए। सारे डॉक्टर परेशान, सारे नर्स परेशान। जो सबसे बड़ा डॉक्टर था अब उसका दिमाग देखें, उसका दिमाग देखें। उसने कहा लोगों परेशान मत हो, कुछ हमें वक्त दो, मैं फैसला करके बताऊंगा कि लड़का किसका है लड़की किसकी है, लड़का किसका है लड़की किसकी है, मैं फैसला करके बताऊंगा। कहा कैसे बताओगे, कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे फैसला करूंगा। अब क्या हुआ, कहा कल तक मुझे मोहलत दी जाए। फौरन अब डॉक्टर ये कहकर चला गया। तो डॉक्टर जिस मोहल्ले में रहता था उसी मोहल्ले में एक मुफ्ती साहब रहा करते थे, एक आलिम दीन रहा करता था, एक अल्लाह का प्यारा खौफ रखने वाला नबी का दीवाना उस मोहल्ले में रहता था। डॉक्टर परेशान होकर के गया, झुर्रियां चेहरे से उड़ रही है, हवाइयां उड़ रही हैं, बड़ा परेशान नजर आ रहा है, बड़ा हैरत में है। गया आलिम साहब के पास, कहा हुजूर एक बहुत जबरदस्त मामला पैदा हो गया है। कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहा सुने मुझको तो पहचानते हैं ना, कहा हाँ आप अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, कहा हाँ लेकिन बहुत बड़ा मामला आ गया है, उसका फैसला आप करेंगे, उसका फैसला आप करेंगे। कहा आलिम साहब ने मैं क्या फैसला करूंगा यार। कहा डॉक्टर ने कहा हुजूर फैसला आप ही करेंगे। कहा क्या बात करते हो, मामला क्या है। कहा हुजूर दो औरतें अस्पताल में आई थी, दोनों का वजह हमल का वक्त करीब था और दोनों को जैसे रूम में ले जाया गया, कुछ ही देर के बाद दोनों के बदन से बच्चे पैदा हुए, लेकिन उन औरतों को नहीं बताया गया किसके बदन से क्या पैदा हुआ है। और दोनों बच्चों को वॉशिंग रूम में डाल दिया गया। जब निकाला गया, लड़का जिस औरत का था उसको दिया गया, लड़की जिस औरत की थी उसको दिया गया। और जैसे लड़की उस औरत के हवाले की गई ना तो औरत बच्ची लेने से इनकार कर दी और कहा नहीं मैं बच्ची नहीं लूंगी, मेरी नहीं है, तुम लोगों ने बदल दिया है। कहा फिर मेरे पास क्यों आए हो। कहा इसलिए आया हूं, उलमा कहते हैं कुरान में सारे मसाइल का हल मौजूद है, कुरान में सारे मसाइल का हल मौजूद है। आलिम दीन ने कहा फिर ठीक है डॉक्टर मुझे रात भर का वक्त दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगा, सुबह मैं आपको बता दूंगा। अब आलिम दीन अपने कमरे में गए, बड़ा खोज किए, बड़ी जरह किए, बहुत कोशिश किए, बेचारे रात भर किताबों पे किताबें पटलते रहे, कुरान की आयत पे आयत पढ़ते रहे हैं, खोज करते रहे, तहकीक करते रहे, पता लगाते रहे। पूरी रात तहकीक करने में, पूरी रात खोज लगाने में उस आलिम दीन ने गुजार दी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसले को हल कर लिया उस आलिम दीन ने, हल कर लिया कि लड़का किसका है लड़की किसकी है। आलिम ने हल कर लिया। अल्लाह अल्लाह फजर की अजान हुई है, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद वो आलिम दीन खुद डॉक्टर के कमरे पे गए। कहा डॉक्टर मैंने हल कर लिया कि लड़का किसका है लड़की किसकी है। अब डॉक्टर तो खुश हो गया, कहा हुजूर बता दें लड़का किसका है लड़की किसकी। कहा ऐसे नहीं, मुझे अस्पताल में लेकर के चलो, मुझे अस्पताल में लेकर के चलो। डॉक्टर उठा है, अब वाश अपने आप को साफ किया, सफाई किया, चेहरा धुला, हाथ पैर धुला, कपड़ा पहना। कहा ठीक है गाड़ी में बैठिए। डॉक्टर
कर उस आलिम दीन को अपनी गाड़ी में बिठाया। सुनो उलमा का मकाम सुनते चलो यार, उलमा का मकाम क्या है। अब आलिम दीन है, गाड़ी में बैठ गया है। अब डॉक्टर लेकर के चला अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा अब तो बता दें, अब तो आप अस्पताल में आ गए हैं, अब तो बता दें लड़का किसका है लड़की किसकी है। तो आलिम दीन ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, जब तक तहकीक नहीं हो जाएगी नहीं बताऊंगा। कहा तहकीक क्या करनी है। आलिम दीन ने कहा जाओ नर्स को भेजो, उन औरतों के पास भेजो, नर्स को भेजो, औरतें नर्स को आ नारे जाएं। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं। मुकर्रर खुसूसी की आमद हो गई है, बस ये बात पूरी हो गई, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। अब आलिम दीन ने कहा और डॉक्टर नर्स को भेजो और कहो कि दोनों औरतें अपने अपने पिस्तान से थोड़ा थोड़ा दूध निकालें और अलग अलग बर्तन में लेकर के आए। दोनों के पास नर्स गई हैं, औरतों से थोड़ा थोड़ा दूध तलब किया है और औरतों ने अपना थोड़ा थोड़ा दूध दिया। देने के बाद आलिम के पास लाकर दे दिया गया। आलिम ने दोनों पे निशान लगा दिया। कहा सुनो मैंने इस बर्तन पे निशान लगा दिया है। अब एक काम करो, इन दोनों को लेबोरेटरी में भेज दिया जाए और कहो डॉक्टर से तहकीक करें कि किस दूध में विटामिन ज्यादा है, किस दूध में विटामिन कम है। दोनों को ले जाकर के जांच करो। अब दोनों बर्तनों को ले जाया गया, दोनों दूध की जांच हो रही है। लेबोरेटरी में जाने के बाद डॉक्टर ने निशान लगा दिया कि इस बर्तन में जो दूध है इसमें विटामिन ज्यादा है और उसके बनिस्बत जो इस बर्तन में दूध है उसमें विटामिन कम है। अब ला करके आलिम के हवाले किया गया। आलिम दीन ने देख कर कहा और डॉक्टर सुन ले, तेरे डॉक्टरों ने जो तहकीक की है लेबोरेटरी के जरिए, जिस दूध में विटामिन ज्यादा है और जिस औरत का दूध है लड़का उसका है और जिस दूध में विटामिन कम है लड़की उस औरत की है। आलिम दीन ने जब इतना कहा डॉक्टर हैरत में है। कहा डॉक्टर आलिम साहब आप बता दीजिए कैसे आपने हल किया है। और अल्लामा अब्दुल रशीद साहब मिसबाही जैसा आलिम दीन मौजूद है, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी जैसा मुतबहिर आलिम दीन वहां मौजूद है। उसने कहा आलिम तूने कहा डॉक्टर तूने कहा था कुरान से जवाब दीजिए। मैंने कुरान को पढ़ा है, कुरान से मैंने जवाब अखज किया है, कुरान से मैंने जवाब तलब किया है, कुरान से मैंने तहकीक की है। कुरान की आयत है इस्तिंबात व इस्तिंबीत की है और कुरान से मैंने मसाइल का इस्तिखराज किया है। और मसाइल को जब मैंने कुरान की रोशनी में जब देखना शुरू किया तो एक आयत से एक मसले का मैंने इस्तिखराज किया है, एक आयत से एक मसले को मैंने निकाला है। कहा कुरान में कौन सी आयत है जिससे तुमने इतने बड़े मसले को आनन फानन में हल कर दिया है। कहा सुनो मेरे कुरान में मेरा परवरदिगार फरमाता है वली दकरे मिसलो हज़्ज़िल उनसिया, मेरा रब फरमाता है मर्द को जब भी दिया जाएगा कि एक मर्द को दो औरतों के बराबर दिया जाएगा, एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होगा। तो सुन ले, जब मर्द का डबल हिस्सा औरत को एक हिस्सा, तो जिस दूध में विटामिन ज्यादा है वो मर्द का हिस्सा है और जिस दूध में विटामिन कम है वो लड़की का हिस्सा है। लिहाजा जो दूध जिसमें विटामिन कम है अब लड़की उसको दे दिया जाए, जिसमें विटामिन ज्यादा है लड़का उसको दे दिया जाए। ये मेरा कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है। कहाँ हम गायब हैं? इसलिए कहा जाता है कुरान पढ़ें कुरान सीखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से बेहतर वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, कुरान पढ़े और पढ़ाए। आप उलमा से प्यार करें, उलमा से मोहब्बत करें, उलमा का दिल तोड़ने की कोशिश न करें। अगर उलमा खुश हैं तो कौम पे बहार आएगी, उलमा खुश हैं कौम पे रहमत आएगी। उलमा की बातों को अमल कर लेंगे तो समझ लीजिए हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह ताला मुझको और सारे लोगों पे अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।